Hello everyone, welcome you all in your own channel Learn Everything. So ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਮਾਈਕਲਸਨ ਇੰਟਰਫੈਰੋਮੀਟਰ। ਵੇਵ ਆਪਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਦੇਖਿਓ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਇੰਟਰਫੈਰੋਮੀਟਰ। ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਡਿਵਾਈਸ ਹੁੰਦਾ ਟੂ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਦ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਆਫ ਲਾਈਟ ਫॉर ਸਮ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਪਰਪਸ। मतलब इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ਨੂੰ एक्सप्लोर करता ਆ ਕਿਹਦੇ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਪਰਪਸ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਬਰਟ ਮਾਈਕਲਸਨ ਨੇ 1881 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਕਲਸਨ ਇੰਟਰਫੈਰੋਮੀਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਿਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਅਰਥ ਥਰੂ ਈਥਰ। ਠੀਕ ਹੈ, यूज टू डिटेक्ट द मोशन ऑफ अर्थ थ्रू द ईथर, मतलब पूरा जो ईथर है बाकी जो भी सीगा ईथर ही सीगा। उस तो इलावा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ स्पेस ਨੂੰ ईथर मान लिया ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ मोशन हैगा अर्थ ਦਾ। ठीक है, और टू डिटेक्ट द सो कॉल्ड हाइपोथेटिकल, इन्हें सो कॉल्ड हाइपोथेटिकल ईथर क्यों होंगे, क्योंकि मन लिया गया पता है ही नहीं ईथर की हैगा, एक्चुअली एक हाइपोथेटिकल हैगा एज अ मीडियम थ्रू विच लाइट वेव आर सपोज टू प्रोपेगेट, मतलब जिहदे सपोज किया जाता कि लाइट वेव्स जिहड़ियां ट्रैवल करके आ रही हैं। ये मेरा एक वीडियो हुई है माइकलसन मॉले एक्सपैरीमेंट, वो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन भी किया होया, तुसीं चैक कर सकते हो। ठीक है, सो ये वाली गल ये नहीं दसी कि एल्बर्ट ने माइकलसन ने 1918 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ फस्ट डिवाइस बनाया ਸੀਗਾ, डिटेक्ट किया सी मोशन ऑफ अर्थ थ्रू ईथर, कि ਜਿਹੜਾ ईथर हैगा ਉਹਦੇ थ्रू अर्थ ਦਾ मोशन किदां ਦਾ आ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ सो कॉल्ड हाइपोथेटिकली है ਤਾਂ सो कॉल्ड हाइपोथेटिकल हैगा ईथर, तो ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਵੇਵਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ। ਓਕੇ, ਸੋ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਸੈਟਅਪ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੇਨ ਇਹ ਹੈਗੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਸੈਟਅਪ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਦੋ ਮਿਰਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦਿਸ M1 M2 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਪਲੇਸਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਲਾਈਟ, ਮੋਨੋਕ੍ਰੋਮੈਟਿਕ ਲਾਈਟ ਦਾ ਸੋਰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਲਈ ਹੈ ਗਲਾਸ ਪਲੇਟ, ਗਲਾਸ ਪਲੇਟ ਕੀ ਕਰੀਏ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਸੌਰੀ ਪੋਲਿਸ਼ਡ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋਏਗੀ, ਕੁਛ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਗੇ ਕੰਪਨਸੇਟਿੰਗ ਪਲੇਟ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਿ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੋਨੇ ਮਿਰਰ ਜਿਹੜੇ 90 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ GP ਹੈਗੀ ਆ ਹਾਫ ਸਿਲਵਰਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਫ ਸਿਲਵਰਡ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਫ ਪੋਲਿਸ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਫ ਸਿਲਵਰਡ ਜਿਹੜੀ ਗਲਾਸ ਪਲੇਟ ਹੈਗੀ ਇਕੁਅਲੀ ਇਨਕਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟੂ ਮਿਰਰ M1 M2, ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਇਕੁਅਲ ਦੂਰੀ M1 M2 ਦੋਨੇ ਉੱਤੇ ਇਕੁਅਲ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੀਮ ਸਪਲਿਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਸਪਲਿਟ ਕਰਦੀ ਬੀਮਸ ਨੂੰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦਾ ਪੈਰਲਲ ਬੀਮ ਆਫ ਲਾਈਟ ਆਬਟੇਨ ਫਰੋਮ ਦਾ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਸੋਰਸ ਆਫ ਲਾਈਟ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੇਵਸ ਜਦੋਂ ਇਹ 'ਤੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਹ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਦੋਨੇ ਇਕੁਅਲ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਡਿਊ ਟੂ ਇੱਕ 'ਚ ਪਾਰਸ਼ਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਪਾਰਸ਼ਲ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। द रिफ्लैक्टेड बीम जी चली जाएगी मिरर M1 को, देखो मैं तुहानूं दिखानी नाल आप देखते हैं इत्थे सही है। देखो द रिफ्लैक्टेड बीम गोज़ टू मिरर M1, द रिफ्लैक्टेड बीम गोज़ टू मिरर M2, सॉरी रिफ्लैक्टेड बीम किधर जाएगी, मिरर M2 वाल जाएगी। देखो इत्थे लिखा होया द रिफ्लैक्टेड बीम गोज़ टू मिरर M2 एंड इंसीडेंट नॉर्मली टू इट, ये नॉर्मली जाके इंसीडेंट की आ। फ्रॉम मिरर M2 द इंसीडेंट बीम इज रिफ्लैक्टेड अलॉन्ग द सेम पाथ, वापस आ गई सेम पाथ वाल। ठीक है, बैक फ्रॉम मिरर देन ट्रांसमिटेड अलॉन्ग GP थ्रू GP, सॉरी GP के थ्रू ट्रांसमिट हो जाएगी एंड टू ज्वाइन द बीम रिफ्लैक्टेड फ्रॉम M1, तो यदि जी M1 तो बीम रिफ्लैक्ट होएगी वो की करेगी ज्वाइन कर लेगी। 10 बीम 3 जी 3 नंबर वाली होएगी, देखो इतने 3 नंबर वाली होएगी, वो दोनों होणगियां। द बीम 3 कंसिस्ट ऑफ लाइट रिफ्लैक्टेड बोथ M1 एंड M2। ठीक है, दोनों तो मतलब जी कट्ठियां आई ना उन्होंने दोनों मिल जाएगी, जिदा इधर भी चल गई एक इधर है ना, दोनों रिफ्लैक्ट होकर वापस जो आई वो इतने आके मिल जाएगी, बीम 3 बन जाएगी उत्थे। ठीक है, एवं द रिफ्लैक्टेड बीम 2 पासिस थ्रू GP थ्राइस, सो जी रिफ्लैक्टेड तीसरी बारी पास कर गई, कितनी बारी पास कर गई थ्राइस। बट द बीम 1 रिफ्लैक्टेड बीम 2 देखो ये 2 वाली 3 बारी पास कर गई आ, तो जी हैगी दूसरी वो पास की एक बारी, पासिस थ्रू थ्राइस, बट बीम 1 पासिस थ्रू इट ओनली वंस। सो टू कंपनसेट फॉर इट एक कंपनसेटिंग प्लेट लगाती है, कंपनसेट करने लिए जी बिल्कुल ये पैरेलल लगाई है। द प्लेट सी इज़ मेड ऑफ द सेम मटीरियल, सेम GP वाला ही मटीरियल जोड़ा वो यूज़ किया गया है। ठीक है, ब्रैकेट लिखा है यूज़ ऑफ प्लेट C इज़ ऑल द मोर एसेंशियल वैन वाइट लाइट इज़ यूज, जो ज़्यादा वाइट लाइट यूज़ करते हैं उदों कंपनसेट करने लिए बहुत जरूरी है। इन सच केस द ऑप्टिकल पाथ लेंस ऑफ बीम 1 एंड 2 मस्ट भी एक्जैक्टली इक्वल होना चाहिए, बीम 1 ते 2 दा 1 2 सारियां बनाई हुई हैं। ठीक है, 3 तुहानूं दस्सिया सी उन्हें दोनों तो कहंदा बिल्कुल मिल के जी कंसिस्ट हुई सी, जी मिरर M1 ते M2 तो रिफ्लैक्ट होकर आई सी उन्होंने तो बनी सी। सो ऑप्टिकल पाथ ऑफ 2 पार्ट ऑफ बीम 3 कैन बी वेरीड
ਐਂਡ ਦੇ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਫਰਿੰਜ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਫਰਿੰਜਸ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਕੋਈ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਮॉल ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਇਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗੇਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਆਈ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਗਈ, ਮਿਰਰ M2 ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲ ਗਈ, ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਕੰਪਨਸੇਟਿੰਗ ਪਲੇਟ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵਾਈਟ ਲਾਈਟ ਉਹ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮਿਰਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਇਕੁਅਲੀ ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ GP ਤੋਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ। ਇਹ GP ਜਿਹੜੀ ਹੈ 45 ਦੇ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ GP ਹੈ ਇਹਨੂੰ 45 ਦੇ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਲੇਸ ਕਰਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਪਲੇਸ ਕਰਨਾ? 45 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਐਂਗਲ 'ਤੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਸੈਟਅਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜੋ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ S1 ਸੋਰਸ S2, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ, ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਏਗਾ, ਉਹ 2D cos θ ਦਾ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਕਸੀਮਾ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੈਕਸੀਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ, 2D cos θ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2p - 1 λ/2। ਇਹ ਮੈਕਸੀਮਾ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2p - 1 λ/2। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਸਰਕੂਲਰ ਫਰਿੰਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਰਿੰਜਿਸ ਆਫ ਇਕੁਅਲੀ ਇਨਕਲਿਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਪੈਟਰਨ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਸਰਕੂਲਰ ਰਿੰਗ ਵਿਦ ਦੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਐਜ਼ ਦੇਅਰ ਆਪਟੀਕਲ ਐਕਸਿਸ। ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਡੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 0 ਲੈ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ 0 ਲੈ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 0 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਂਸਰ λp = λd/2। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ∆p = 2D cos θ + λ/2। ਇਹ ਹੈਗਾ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਫਰਿੰਜਿਸ ਦਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਡੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 0 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ∆p, ਸੌਰੀ ਲੈਮਡਾ ਬੋਲਤਾ ਸੀ ਮੈਂ, ∆p = ਹੈਗਾ λ/2। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਡੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਹ ਵਾਲਾ 0 ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਜਸਟ ਕਿੰਨਾ ਰਹੇਗਾ, λ/2 ਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ 'ਚੋਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ। ਅਤੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੈਂਟਰਲ ਫਰਿੰਜਿਸ ਡਾਰਕ, ਇਹਦੇ ਕੇਸ 'ਚੋਂ ਬਣੇਗੀ ਡਾਰਕ। ਤਾਂ ਕੇਸ 2 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਫ ਵੀ ਮੂਵ 1 ਮਿਰਰ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਇਟਸੈਲਫ, ਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ θ 0 ਲੈ ਲਿਆ, cos 0 1 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। देयरफॉर व्हेन d λ/4 हो जाएगा तो d की वैल्यू λ/4 हो जाएगी। तो सेंटर इंटरफेरेंस जो सेंटर ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न बिकम मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि लैम्डा मैक्सिमम हो गया, डिवाइड नहीं हो रहा हुण किसी ना। ठीक है, अगेन जो इदा तुसीं मूव करना फर्दर λ/4 नाल भी फाइंड द मिनीमम, सानू मिनीमम सेंटर मिल जाना। सो एक बारी मूव कराना तो मैक्सिमम मिल गया, अगेन मूव करोगे तो वी फाइंड द मिनीमम ऑफ द सेंटर ऑफ द फ्रिंज पैटर्न। दस बाय मूविंग वन ऑफ द मिरर पैरेलल टू इटसेल्फ सेंटर फ्रिंज बिकम मैक्सिमम एंड मिनीमम अल्टरनेटिवली। सो इत्थे ये याद रखना, जो असीं माइकलसन दा जिहड़ा एक्सपैरीमेंट हैगा आ इंटरफेरोमीटर का, जो असीं पैरेलल एक दूजे के मिरर जिहड़े आ उन्हां नूं एक दूजे के पैरेलल अपने पैरेलल जिहड़े मूव करवाने तो सानू सेंटर फ्रिंज का मैक्सिमम तो मिनीमम मिलते हैं अल्टरनेटिवली। पहला मैक्सिमम मिलेगा, मिनीमम, मैक्सिमम, मिनीमम। ठीक है, सो जे इफ वी लुक द केस 3 की गल करते हैं कि जे असी पैटर्न नूं ऑब्लिकली की गल करते हैं कि देखते हैं, दैट इज इंसीडेंट लाइट टू ऑप्टिकल एक्सिस एट सेंटर एंगल से थीटा, वी ऑब्जर्व द सर्कुलर रिंग से द मिनीमम फॉर विच डी इनक्रीजेज 2d थीटा। ये डी ਵਧੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ऑब्लिकली हैगा, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ऑब्लिकली की गल करते हैं, लुक करते हैं फ्रिंज पैटर्न तो ऑब्लिकली, तो साढ़े को 2d थीटा इनक्रीज करता है, 2d थीटा इक्वल टू पी लैम्डा सीगा, बट फॉर द फ्रिंजिस ऑफ पीएथ ऑर्डर इट शुड मतलब ये बराबर है ना, तो कॉन्सटेंट हो गया इतों कॉस थीटा इक्वल की आ गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। इनू 2d इधर लै जाओ नीचे, कॉन्सटेंट अपॉन डी। सो जो डी इनक्रीज करेगा द फ्रिंज ऑफ पीएथ ऑर्डर कॉस थीटा डिक्रीजेज और इनक्रीजेज। इन अदर वर्ड्स हुण ये गल मीन इफ वन मिरर is moved parallel to itself, the fringe appear to be expanding outward and the central fringe becoming the maximum or minimum alternatively। सो ये गल है कि ये की होएगा, जो मिरर मूव कराओगे पैरेलल टू इटसेल्फ, फ्रिंजिज अपीयर की होणगियां एक्सपैंड हो रही आउटवर्ड्स, तो जो सेंट्रल फ्रिंजिज है कभी मैक्सिमम हो रही कभी मिनीमम हो रही। ये पॉइंट्स थोड़े थोड़े याद रखने। उस तो बाद लोकलाइज्ड कुछ फ्रिंजिज बनाई हुई हैं। इस तो यूजेस की है, असी दी हैल्प नाल वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी लाइट की फॉर्मूलेज उही लैके असी जिद्दां उहदे विच कीता सीगा, न्यूटन रिंग वाले एक्सपैरीमेंट्स भी कीता सीगा, माइनस करके असी लैम्डा कर ली सी। सेम इत्थे इदां ही हैगा, सानू पता है सेंट्रल डार्क फ्रिंज की गल करिए आया सी 2d इक्वल टू पी लैम्डा, लैम्डा 2/pd। ठीक है, यानी असी इहनूं कह सकते 2d1, जिवें पहले देखा पी लैम्डा आ जाएगा, डी2 लिए लैम्डा तो कॉन्सटेंट आ, इत्थे दोनों माइनस कर दिता तो लैम्डा निकल गया।
ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਮॉल डिफरेंस इन वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, λ2 माइनस λ1 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यही फॉर्मूला इदा लै लीए, तुसीं फॉर्मूला याद रखियो बस। डिटरमाइन ऑफ रिफ्लैक्टिव इंडैक्स भी फाइंड आउट कर सकते, न्यूटन लिंक भी असीं ये सब चीज़ां फाइंड आउट कर सकते सी। सेम इत्थे बस फॉर्मूले तुहाडे लई इंपॉर्टेंट है कि इत्थे फॉर्मूला हैगा n=m λ/2t+1। थिकनेस फाइंड आउट कर सकते हैं, वो जी शीट होएगी ट्रांसपेरेंट शीट, दैट इज़ m थिकनेस, m λ/2n-1 ये फाइंड आउट कर सकते हैं। टी इत्थे थिकनेस है, n इत्थे तुहाडे कोल इत्थे m n कर लियो, n की है रिफ्लैक्टिव इंडैक्स, ठीक है, ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हैगा वैन द मूवेबल मिरर ऑफ द माइकलसन इंटरफेरेंस शिफ्ट किया गया, मिरर नूं कितना शिफ्ट किया गया 0.589, यानी डेल्टा डी तुहानूं दे दित्ता कितना शिफ्ट, इन्ने तो शिफ्ट ऑफ 200 तो किन्ने दी ऑब्जर्व की गई 200 दी, तुहाडे कोल एम की वैल्यू आ जाएगी। फाइंड आउट की करना तुसीं, वट इज़ द वेवलेंथ ऑफ यूज्ड, हुणे वेवलेंथ का फॉर्मूला साडे को λ2 डेल्टा डी अपॉन एम आ जाएगा, ठीक है। देखो फॉर्मूला किया सी आपां λ=2 डेल्टा डी अपॉन एम की वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते, यदि न्यूमैरिकल जो पूछ लेनी वही चीज़, ठीक है। ये वाला न्यूमैरिकल कर लिया, बस यही सीगा माइकलसन का जो इंपॉर्टेंट सीगा मैं तुहानूं करा दिता। ये मेन हैगा, इनू कर लो, बाकी जो मेन फॉर्मूलेज नोट कर लियो एंड थोड़ी एक्सपैरीमेंटल सैटअप देख लियो। बस फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट आ कि जो आप प्लेन मिरर्स नूं इधर उधर करते हैं फिर की होंदा, सेंटर ब्राइट फ्रिंज अल्टरनेटिव सानूं कदों मिलती है जो आप मूव करवाने, ये गल्लां थोड़ियां थोड़ियां नोट कर लेनियां। थैंक्स फॉर वॉचिंग।